Very good morning, everyone. Last lecture, I have explained you on the introduction of conversion or sale of partnership business in partnership firm into a limited company. So what happens here? The firm is converted into company. Partnership firm is converted into company, or there can be a sale of the partnership business to a existing limited company. तो यहाँ पे दो चीज हो सकता है, या तो सेम कंपनी कन्वर्ट होके सेम पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो रही है कंपनी में, या तो द पार्टनरशिप फर्म is selling its business to the company. Two possibilities are there, but what we have to understand is whenever there is a sale of business और देर इज अ कन्वर्जन, जो प्रीवियस बिजनेस था वो तो बंद हो जाएगा. पार्टनरशिप बंद होने के बाद ही कंपनी स्टार्ट हो सकती है. व्हेन पार्टनरशिप डिसॉल्व्स, partnership firm ends, then only the company can start. So when business is getting to an end, the other business which is getting started have to pay something to the old business, that is known as purchase consideration. In this chapter we have three methods to calculate purchase consideration, as we had discussed in the yesterday's lecture, in the last lecture, that there are three methods to calculate PC. The first one is known as lump sum method. Under lump sum method, what happens? You will be directly given with the amount of the PC. So no need of much calculations. And second method, that is net payment method, जिसका अभी हम sum लेने वाले हैं. In that you will see that what happens, द पीसी कैसे सेटल होने वाला है, मींस आपको परचेज कंसिडरेशन में क्या मिलेगा. कैश, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर विल बी क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन. उसको कैलकुलेट करके यू विल गेट द पीसी. And the third and the last method is net asset method. By the same method we have done the sums in amalgamation. अमालगमेशन में हमने जितने भी सम्स किए, दो सम्स वर इन नेट असेट मेथड, जिसमें हम असेट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म लेते हैं रिवाइज या बुक वैल्यू में, और माइनस करते हैं लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय न्यू फर्म इन रिवाइज और बुक वैल्यू. Yes, this is the new chapter. So this is related to amalgamation. The chapter is related to our previous chapter. So let us start this sum. What we will do, we will calculation of PC. First let us read the question and then we will start consideration. And one, so let us read this. Let us read the question. Calculate the amount of purchase consideration from the following details. Calculate the amount of purchase consideration from the following details. What is given? The purchasing company agreed to issue. Purchasing company means the new company agreed to issue. What are they giving? What are they giving? 15,000 equity shares of rupees 10 each. 15,000 equity shares of rupees 10 each, valued at rupees 12 each. मतलब 10 रुपए का शेयर है, but the company is going to pay that 10 rupees का शेयर. जो 10 rupees का शेयर है, the company is going to give that share at how much price? 12 rupees. मतलब ये क्या है? This is issued at प्रीमियम है. दिस इज इशूड एट प्रीमियम. कैसे पता? देखो, शेयर का थ्री वे होता है इशू करने का. वन इज पार. पार मीन्स 10 रुपीज का शेयर इशूड एट 10 रुपीज मीन्स
giving the share at face value is known as par. Discount means less than the face value, and premium means more than the face value. If equity share is of 10 rupees but they are giving it at 12, means 2 रुपए का प्रीमियम है, तो 15,000 शेयर नया कंपनी इज गिविंग at as 12 rupees. तो 15,000 into 12 when we do, we get the amount of equity shares. Then what else they are going to give? 6,000 6% debentures. तो 15,000 15,000 equity shares will be given and 6,000 6% debentures. Now what are these debentures? Debentures are the borrowed fund, is the type of borrowed fund by which the company can raise money, collect money from the public. So debentures can be issued only by companies. Partnership firms don't have the right to issue डिबेंचर. तो पार्टनरशिप फॉर्म जब कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो लोग डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं. तो पीसी में डिबेंचर्स मिल रहा है. और ये डिबेंचर्स क्या ये 6% क्या है? व्हाट इज दिस 6%? दिस 6% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर बाय द वंस हु हैव दिस डिबेंचर. जो डिबेंचर खरीदते हैं उनको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं. एंड डिबेंचर होल्डर्स को फ्यूचर में जब भी कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, इनकम देगी, तो उनको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा. Like you invest in the FD in a bank, you get a rate of interest as you get interest. Here if you invest in the debenture, you will get interest of 6%. ये 6% ऐसे के ऐसे लिखना है, इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, बस लिखने के लिए है ये हमारे लिए. सो 6,000 का डिबेंचर है, 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 10 है, बट दे आर इशूइंग एट 5% डिस्काउंट. 10 रुपीज में 5% निकालो कितना होता है? 10 रुपीज का 5% इज हाउ मच? 50 पैसा. 0.5. 10 रुपीज का 5% इज 0.5, मतलब डिस्काउंट है. 10 रुपीज का डिबेंचर कंपनी इज गिविंग अस एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. मतलब हमें कितने में मिलेगा ये वाला डिबेंचर्स? 9 रुपीज 50 पैसा में. 10 रुपीज का डिबेंचर है, बट बिकॉज वी आर गेटिंग इट इन अ डिस्काउंट, वी विल गेट इट फॉर 10 रुपीज माइनस 0.5, दैट इज इक्वल टू 9 रुपीज 50 पैसा. 9.5 हमें ये डिबेंचर मिलेगा 9.5 में. अगर प्रीमियम होगा तो वी विल ऐड बिकॉज मोर देन द फेस वैल्यू. डिस्काउंट रहेगा तो वी विल माइनस लेस देन द फेस वैल्यू. एंड और क्या मिलेगा? पे कैश इक्वल टू 10% of the face value of shares and debentures issued. मतलब ये कंपनी को पीसी में इक्विटी शेयर्स मिलेगा, डिबेंचर्स मिलेगा, और एक चीज मिलने वाला है, दैट इज कैश. बट हाउ मच कैश? कैश विल बी पेड इक्वल टू 10%. बट किसका 10%? 10% of the face value of shares and debentures. मतलब जितना शेयर्स है और डिबेंचर्स है उसका फेस वैल्यू इज हाउ मच? 10 रुपीज. दोनों का, डिबेंचर का भी फेस वैल्यू 10 है और इक्विटी का भी फेस वैल्यू 10 है. फेस वैल्यू मीन्स द प्रिंटेड वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी. तो यहाँ पे इक्विटी शेयर का और फेस वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा. सो फेस वैल्यू का हाउ मच दे से 10%. So कैसे निकालना है, that I will explain you when we solve the sum. Now let us see क्या मिलने वाला है पीसी में एंड ये कौन सा मेथड है. यहाँ पे क्या पे करने वाले हैं वो दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं पेमेंट मेथड. इसको क्या बोलते हैं? पेमेंट मेथड ऑफ पीसी. सो पेमेंट मेथड में व्हाट आर द कंपनी पेइंग? इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच है, बट कितने में इशू हो रहा है? एट रुपीज
12 मीन्स प्रीमियम में इशू हो रहा है, 15,000 का शेयर है, बट हमें 10 रुपीस में नहीं मिल रहा, हमें कितने में इशू हो रहा है? कॉस्ट प्राइस क्या है? इशू प्राइस और कॉस्ट प्राइस इज 12 मीन्स फेस वैल्यू तो दिखाना ही पड़ता है बिकॉज दिस वैल्यू विल नेवर चेंज, बट वी आर नॉट गेटिंग द शेयर्स एट 10 रुपीज, वी आर गेटिंग एट 12 रुपीज। तो पीसी में जितने में मिलता है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 1,50,000 इंटू 12, दिस 15,000 इंटू 12 कितना होता है? इट इज 1,80,000 ना, 15,000 इंटू 12 करो, हाउ मच आर यू गेटिंग? 15,000 into 12, you're getting 1,80,000, 1,80,000 मतलब इक्विटी शेयर मिलेगा 1,80,000 का। एंड क्वेश्चन में एक और चीज मिलेगा इन द पीसी, दैट इज 6,000, 6% debentures of rupees 10 each, this is also of 10 rupees, बट इशू कितने में करेंगे? एट हाउ मच दे आर गोइंग टू गिव? 10 रुपीज में 5% डिस्काउंट निकालो, यू विल गेट रुपीज 9.5, 9.5। तो 6,000 debentures are there, but face value is 10, but cost value कितने में they are issuing us? cost value और issue value is 9.5, so multiply करो, how much are you getting? Are you getting this amount? 57,000। फिर इसके बाद दे आर गिविंग अस कैश, दे आर ऑल्सो गिविंग अस कैश, तो कैश कितना दे रहे हैं? कैश दे से 10%, जैसे कैश कितना है? 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, तो शेयर है 15,000 और उसका फेस वैल्यू है 10, बट सिर्फ शेयर का 10% बोला है या डिबेंचर का भी? तो प्लस करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज शेयर प्लस डिबेंचर। सो डिबेंचर कितना है? डिबेंचर इज 6,000 और कितना फेस वैल्यू है? 10। शेयर का भी फेस वैल्यू 10 है, डिबेंचर का भी फेस वैल्यू 10 है, इसका दे से हाउ मच परसेंट? 10%। ये सबका, ये जितना भी पैसा होगा ऐड करके उसका 10% दे विल पे इन द वे बाय वे ऑफ कैश। बोलते हैं ये होता है 15,000 इंटू 10 इज 1,50,000, 6,000 into 10 is 60,000, 1,50,000 plus 60,000 is 2,10,000। if you want to further calculate here, ये होता है 1,50,000 और ये होता है 60,000, दोनों को ऐड किया तो इट इज 2,10,000, उसका 10% कितना होता है? उसका 10% is, you get the amount, how much are you getting? उसका 10% निकालो, आर यू गेटिंग 2,10,000 का 10% is 21,000, मतलब कैश हाउ मच दे आर गोइंग टू पे? 21,000। सो जब ये सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा परचेस कंसीडरेशन। क्या मिल रहा है? परचेज कंसिडरेशन 1,80,000 इक्विटी शेयर्स मिल रहा है, 57,000 वी विल गेट द डिबेंचर्स एंड 21,000 इज द कैश। सबको ऐड करेंगे तो वी विल गेट द परचेज कंसिडरेशन। सो ये परचेज कंसिडरेशन किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा, मतलब पार्टनर्स को उनका बिजनेस बेचने के लिए कंपनी क्या देगी? इक्विटी शेयर देगी, डिबेंचर देगी और कैश देगी। दिस सम इज डन, दिस सम इज डन। Now let us go to the next small question to again see about purchase consideration के ऊपर ही एक और सम करते हैं, सेम मेथड, बिकॉज लमसम मेथड में तो डायरेक्टली आंसर दिया रहता है,
नेट एसेट मेथड का पीसी का सम हमने पहले भी किया है. दिस वन इज न्यू. सो लेट अस टेक वन मोर पीसी के लिए एक क्वेश्चन. Let us read the question. Calculate the purchase consideration from the following details. Calculate the purchase consideration from the following details. The purchasing company agreed to issue 8,000 equity shares of rupees 10 each. 8,000 equity shares of rupees 10 each valued at par. मतलब यहाँ पे प्रीमियम नहीं है, इक्विटी शेयर्स पार में इशू हो रहा है. मीन्स 8,000 एट 10. पार मीन्स व्हाट? पार मीन्स फेस वैल्यू. मीन्स आपको डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा, प्रीमियम भी नहीं मिल रहा. यू विल बी गेटिंग एट द प्रिंटेड वैल्यू. सो 8,000 इंटू 10, इक्विटी शेयर जो मिल रहा है दैट विल बी 80,000. 8,000 इंटू 10. फिर there is 500. That is 500. 8% preference shares of rupees 100 at 10% premium. 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर है, 10% का प्रीमियम है. तो प्रीमियम मीन्स व्हाट? मोर देन द फेस वैल्यू और लेस देन द फेस वैल्यू. फेस वैल्यू कितना है? शेयर प्रेफरेंस शेयर इज ऑफ 100. प्रेफरेंस शेयर इज ऑफ 100 एंड प्रीमियम इज 10%. तो 100 का 10% निकालो. 100 का 10%, 100 10% is 10 rupees. 100 10% is 10 rupees. मतलब प्रेफरेंस शेयर हमें 110 में मिल रहा है. इशू प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है? 110. 100 प्लस 10, 110 इज द प्रेफरेंस शेयर का इशू प्राइस. फेस वैल्यू तो 100 है, बट कितने में मिल रहा है? 110 में. कितना प्रेफरेंस शेयर है? नंबर सी हाउ मच इट इज? 500. नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 500. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 8,000. फिर डिबेंचर भी है क्वेश्चन में. डिबेंचर का नंबर है 1,000. 1,000 डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच. 1,000 debentures of 50 each at 10% discount. Now discount मतलब बोलो more than the face value या less than the face value. Discount means more than the face value or less than the face value? Discount means less than the face value. Less than. So minus करना पड़ेगा. तो 1,000 डिबेंचर है 50 रुपए का. नाउ टेल 50 का 10% कितना होता है? 50 का 10% इज 5 रुपीज. करेक्ट. 50 का 10% इज 5 रुपीज. मतलब 50 रुपीज का डिबेंचर 45 रुपीज में मिलेगा. डिस्काउंट मीन्स वी हैव टू लेस. 10% of 50 is 5, means 50 minus 5. डिबेंचर का इशू प्राइस या डिबेंचर का कॉस्ट will be 50 minus 5, that is 45. 50 minus 5, that is 45. correct. 50 minus 5, that is 45. एंड एक और चीज देने वाले, डिबेंचर भी दे रहे, और क्या मिल रहा है पीसी में? कैश भी मिल रहा है. पे कैश equal to 10% of the total purchase consideration. मतलब कैश जो भी निकालना है टोटल परचेज कंसिडरेशन का 10%. तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो बाकी का परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा. उसमें कैश नहीं है तो वो 90% रहेगा. कैश इज 10% ऑफ द टोटल परचेज कंसिडरेशन ना. तो रिमेनिंग परचेज कंसिडरेशन कितना रहेगा? अगर उसमें 10% कैश नहीं है तो वो 90 रहेगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम 10% बाकी का कैश निकाल लेंगे. अगर जो हम लोग निकालेंगे, जो हमने फाइंड किया बाकी का 3 चीज, दैट इज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स, वो पकड़ के जब कैश भी मिला है, कैश जो है दैट इज 10% ऑफ टोटल परचेज कंसिडरेशन, तो बाकी का 90% रहेगा. गेटिंग माई पॉइंट. चारों मिला के परचेज कंसिडरेशन बनता है. इफ कैश इज इक्वल टू 10%, if cash is equal to 10% of the total purchase consideration, so the remaining will be how much?
बाकी 3 कितना रहेगा? अगर टोटल परचेज कंसिडरेशन 100 है और वो 100 में कैश 10 है, तो बाकी का 3 एड अप करके कितना रहेगा? 90 रहेगा। तो हमें वो 3 का वैल्यू पता रहेगा, क्योंकि अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कैश का भी निकाल सकते हैं। दैट वे वी विल कैलकुलेट। सो नाउ पे अटेंशन हियर, क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन कौन सा मेथड है? ये पेमेंट मेथड। तो इसमें सबसे पहले व्हाट इज गिवन? सबसे पहले इक्विटी शेयर इज गिवन। सो लिखेंगे 8000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 में ही मिल रहा है, ये कितना हो जाएगा? 80,000 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे चाहिए तो आई विल शो इन द ब्रैकेट 8,000 कैसे मिला? 8,000 इंटू 10 जब किया तो वी गॉट 80,000। आई विल शो हियर वी गॉट 80,000। सेम वे प्रेफरेंस शेयर का भी करना है। प्रेफरेंस शेयर कितना है? प्रेफरेंस शेयर इज 500 कॉमा 8%। ही 8% क्या है? ये डिविडेंड है। प्रेफरेंस शेयर के आगे जो 8% है ये क्या है? ये फिक्स्ड डिविडेंड है, जो फ्यूचर में मिलेगा। अभी तो कंपनी जस्ट स्टार्ट हो रही है, बिकॉज पार्टनरशिप इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिमिटेड कंपनी। सो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 एट ₹110। ये 110 कैसे मिला? 10 रुपीज का प्रीमियम, 100 पे 10% का प्रीमियम है। सो 100 प्लस 10 इट इज 110। प्रीमियम को हम हमेशा ऐड करते हैं। सो यहाँ पे करो 500, टेक अ ब्रैकेट, ओपन अ ब्रैकेट, 500 इंटू 110 कितना होता है? 500 into 110 कितना? How much is it coming to? 55,000. Are you getting? 55,000। 500 प्रेफरेंस शेयर पर 100 में नहीं इशू हो रहा है, प्रीमियम में इशू हो रहा है। प्रीमियम मीन्स फेस वैल्यू में वो प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा। 100 का 10% इज 10। सो हमने ऐड किया, वी गॉट दिस। और एक चीज है, 1000 डिबेंचर्स, 1000 डिबेंचर्स, पर डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया ना, ऑफ ₹50 ईच एट ₹45। ये 45 कैसे मिला? डिस्काउंट है 10% का, 50 में से 10% डिस्काउंट माइनस किया, 50 माइनस 10% करो, यू विल गेट 45। सो ये अमाउंट कितना रहेगा? 1000 इंटू कितने में दे रहे डिबेंचर? 45 में। तो ऐड करो, कितना आ रहा है? 45,000। आर यू गेटिंग दिस? 45,000। अब ये सबको हम जब ऐड करेंगे तो हमें पीसी में कैश को छोड़ के बाकी का पीसी मिल जाएगा। से जब व्हेन वी ऐड ऑल दिस, जब ये सबका टोटल करते हैं तो हमें कितना मिलता है? जस्ट ऐड 1,80,000। Are you getting this amount when we add all the three? 1,80,000. But PC में cash also is there. PC में cash also is there. यहाँ पे हमने लिखा, ये समझने के लिए, this is excluding cash ना, इसमें cash नहीं था, excluding cash, एक्सक्लूडिंग कैश इट इज 1,80,000। बट कैश कितना दिया है? कैश इज 10% ऑफ टोटल परचेज कंसिडरेशन। तो कैश अगर टोटल पीसी का 10 है तो ये 1,80,000 कितना रहेगा? 90 रहेगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो तुमको ऐसे बताती हूँ, ये 1,80,000 अगर ये 90 है, ये 1,80,000 अगर 90 है तो 10% कितना रहेगा?
यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क, हमें पता नहीं है ये कितना है, ये 10% वैल्यू कितना रहेगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जस्ट टू शो, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 1,80,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 90, डिवाइड बाई 90, कितना मिला? हैव ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर ईयर? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20,000 मिला, कैश का 20,000 मिला। सो हमें पता चला कि कैश कितना है, 20,000 है। सो हमें टोटल पीसी मिल गया, टोटल परचेस कंसीडरेशन, टोटल परचेस consideration is how much? 1,80,000 plus 20,000 which is equal to 2 lakh. So इसके साथ this is done, इसके साथ this is done. See, one more thing we will be doing today now is we will be looking into the statutory format of balance sheet of a company under Schedule 3 of the Companies Act. ये क्यों important है? This is important because कि हम ये चैप्टर में पार्टनरशिप कन्वर्ट होगा कंपनी में। अगर क्वेश्चन में आपको कभी कंपनी का बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला है, न्यू बैलेंस शीट, कंपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोलेंगे, तो हम कंपनी बैलेंस शीट ये हॉरिजॉन्टल नहीं, ये वर्टिकल फॉर्मेट में, शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में वी हैव टू प्रिपेयर। सो आई विल एक्सप्लेन यू दिस बैलेंस शीट। सो ये बैलेंस शीट में नेम ऑफ द कंपनी जो है वो लिखेंगे, फिर बैलेंस शीट का डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स के लिए एक कॉलम बनाएंगे। एंड यहाँ पे जो बोला है ना, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वी विल प्रिपेयर नोट्स, नोट्स के लिए एक अमाउंट बनाना है, एक अमाउंट का कॉलम, और एक अमाउंट का कॉलम फॉर रुपीस। नॉर्मली ये जो फॉर्मेट है ना, इसमें दे विल शो करंट ईयर का फिगर्स एंड प्रीवियस ईयर का फिगर। जो फॉर्मेट है उसमें 2 ईयर का फिगर बना लिखते हैं क्योंकि कंपैरिजन इजी होता है। लेकिन जब हम लोग सम्स करते हैं ना, तो सम्स में हम कभी भी 2 ईयर्स का फिगर्स नहीं लिखते, हम हमेशा सिर्फ करंट ईयर का ही फिगर लिखते हैं। बट व्हेन कंपनी इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द स्टेकहोल्डर्स, ऑफ इन फ्रंट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड ऑल, वो लोग दोनों ईयर का फिगर दिखाते हैं, इसलिए फॉर्मेट में ऐसे दिखाया है। तो हमने क्या किया है, हमने हमारे कंपनी के बैलेंस शीट को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। एक जिसको बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये हमारा लाइबिलिटी साइड है, और दूसरा हम बोलते हैं असेट्स। We have classified our balance sheet into 2 types, equity and liabilities, and the second one is known as assets. So equity and liabilities में equity मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर कौन है? ओनर है कंपनी के। हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो इसमें जो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, तो शेयर होल्डर फंड में 2 चीज होगा, एक होगा शेयर कैपिटल, एंड शेयर कैपिटल में आता है 2 टाइप का शेयर होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। द एसपी स्टूडेंट्स इन 12th स्टैंडर्ड, उनको ज़्यादा इसका आइडिया रहेगा। शेयर कैपिटल में 2 टाइप का शेयर होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस इज नथिंग बट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो भी प्रॉफिट्स होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, कोई भी रिजर्व रहने दो, इट विल कम इन द रिजर्व एंड सरप्लस। कोई भी रिजर्व रहने दो, कोई भी फंड रहने दो, इट विल बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैं तुम लोगों को ना सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी जो हमारे सम्स में रहेगा। ये जो फॉर्मेट है ना, इट इज हैविंग एवरीथिंग, बट नॉर्मली जब भी हम सम्स प्रिपेयर करते हैं, तो ये
मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये नहीं दिया रहेगा कभी भी। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी नहीं रहेगा। तो ये सब देखने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली कम टू नॉन करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज नॉन करंट लाइबिलिटी, अदर वन इज करंट लाइबिलिटी। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी मीन्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब डिबेंचर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, ऐसा कुछ भी रहेगा तो इट विल बी अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये आगे के तीन है ना, ज़रूरत नहीं है। सिर्फ करंट, नॉन करंट लाइबिलिटी में आप लोग सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग समझ गए तो बहुत हो गया। यू आर इन SY एंड ये चैप्टर के हिसाब से भी long term borrowing, you have a full fledged chapter in your TY for this फाइनल अकाउंट्स। तो टेंशन, अभी टेंशन लेने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यू हैव करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इसमें हम हमेशा है ना, सपोज डायरेक्टर ने कुछ, डायरेक्टर से लोन लिया है या बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है। व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, करंट अकाउंट में, लेकिन फिर भी बैंक ने आपके चेक को हॉनर किया, या नेगेटिव बैंक बैलेंस, नेगेटिव बैंक बैलेंस या नेगेटिव कैश बैलेंस इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। दैट इज अ शॉर्ट टर्म, मतलब ज्यादा पीरियड के लिए नहीं होता। जैसे ही हम अकाउंट में पैसे डालेंगे वैसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो बैंक क्या करते हैं, आपके अकाउंट में पैसे नहीं होगा तो भी आपके अगर कोई आपकी इधर चेक देते हो तो वो चेक को हॉनर कर देता है। तो दैट नेगेटिव बैंक बैलेंस इज बैंक ओवरड्राफ्ट। उसको किधर लिखना है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। फिर वी हैव ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स मतलब क्रेडिटर्स बिल पेएबल। ध्यान में रखना, ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर बिल पेएबल, दोनों को हम ट्रेड पेएबल बोलते हैं। देन वी हैव अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी में क्या लिखना है? कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया या कोई भी दूसरा कुछ लाइबिलिटी आ गया। नॉर्मली इट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो हम लोग करंट लाइबिलिटी में लिखते हैं। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब इट इज प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड। कंपनी क्या करती है? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, तो वो डिविडेंड ऑन द स्पॉट नहीं देती, अभी प्रपोज करती है, 6 महीने बाद पे करती है। तो उसको भी हम इधर लिखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स अभी नहीं पे करते हम, करंट ईयर का टैक्स नेक्स्ट ईयर पे करते। हमेशा ध्यान में रखना, इस साल का जो भी प्रॉफिट है उसका टैक्स हम गवर्नमेंट को नेक्स्ट ईयर में पे करते। करंट ईयर में हम हमेशा प्रीवियस ईयर के इनकम का टैक्स गवर्नमेंट को पे करते। सो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आता है? प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। ये लाइबिलिटी साइड हो गया। इसके बाद हमारा असेट साइड है। असेट साइड को भी हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है। एक को बोलते हैं नॉन करंट असेट और दूसरों को बोलते हैं करंट असेट। नॉन करंट असेट मींस लॉन्ग टर्म असेट्स। नॉन करंट असेट मींस लॉन्ग टर्म असेट्स, जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी है ना, हम फिक्स असेट नहीं बोलेंगे, फिक्स असेट को क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी मीन्स अवर लैंड, बिल्डिंग एंड ऑल। प्लांट मतलब हमारा मशीनरी, इक्विपमेंट मतलब भी हमारा मशीनरी। सो अभी प्लांट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है। ये नीचे का इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे का दो टाइप, चार टाइप्स दिखा रहे पर दो ही टाइप्स हमें इंपॉर्टेंट है। एक है टैंजिबल असेट, दूसरा है इनटैंजिबल असेट। Tangible assets are those assets which we can see, touch and feel. Intangible assets are those assets which we cannot touch. We cannot touch, see, but we can only feel. So इसका important example है goodwill, कंपनी का reputation, copyrights, patents,
ऑल आर इनटैंजिबल राइट्स, इनटैंजिबल असेट्स. एंड टैंजिबल असेट्स में क्या आता है? बिल्डिंग, प्लांट, व्हीकल, कंप्यूटर, लैंड, ये सब कुछ है टैंजिबल असेट, जिसको हम टच फील देख सकते हैं. इंटैंजिबल को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. वी कैन ओनली फील इट, लाइक द रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी, दैट इज गुडविल. फिर ये कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटैंजिबल असेट्स, ये सब है ना नॉर्मल, इट विल नेवर कम इन दिस लेवल. तुम लोग के ये लेवल में तो ये नहीं आएगा. इट इज सपोज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, या कोई हम लोग नया कुछ पेटेंट्स डेवलप कर रहे हैं, इंटैंजिबल असेट्स, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. देन 1 मिनट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर द इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. फिर यहाँ पे करंट एसेट में आ जाओ. करंट एसेट में वी हैव करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज मीन्स स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स डेटर्स and bill payable, cash and cash equivalent means cash balance, bank balance. फिर loans and advances में prepaid expense, any other assets. The asset side is also done. इतना आपको सिर्फ समझना है ये चैप्टर में.